Hello everyone, this is the second episode of Frick Friends, and as you all know, Pakistan finally managed to break the curse and we are finally defeated India. So a big hats off for the men in green, and personally मुझे इतनी खुशी हो रही 22 years हो गए हैं क्रिकेट देखते हुए और ये पहली दफा हुआ है. And I mean मेरे दोस्त memes भेज भेज के उनका बुरा हाल हो गया है. And yesterday we had our whole family. It was like a khandan thingy. सारा khandan आया when we watched it. So बहुत मजा आया. Mohit, your thoughts on yesterday's match? I mean, most of your predictions from yesterday were spot on. I mean, I'm impressed, bro. यार क्या कर सकते हैं। बेहतरीन मैच था यार, काफी अच्छा रहा। सारी मीम्स की अगर तुमने बात की सबसे अच्छी थी वो उसका बाबर आजम की शक्ल थी कि व्हाट डू यू थिंक when you see a bowler Usually facing I you? get one meme from a person per week, like one to like have a normal conversation. एक meme आती है हफ्ते में. Literally आज एक ही बंदे ने मुझे 15 memes भेज दिए. हमने क्या पास कर दिया, मेरा कल पेपर भी है. ठीक है. So moving on to the next match that we have, New Zealand versus Pakistan, the most anticipated, not most क्योंकि पहला तो वो था इंडिया वाला. So what are your thoughts on it? We will begin with Zoha. I think with Pakistan, the best thing you can do is like anger them, and which has happened. और वो गुस्सा नजर आ रहा है, कल बहुत नजर आ रहा था. You could see that all of them were, they were coming from a place of anger. They were coming from a place of hurt. Because जिस तरह उन्होंने खेला, you could see that उन्होंने homework किया हुआ है. रोहित शर्मा की जो wicket है, it's the same in swinger जिस पे वो हमेशा out होता है. And then you could see that they came prepared. They came for a goal. And then after the match, जो बाबर की उन्होंने लगाई है, he's giving the speech to everyone in the dressing room. He's saying that this was not the goal. Our goal is something bigger. So you can see कि target है. And so I'm really hopeful. Before this match, I hadn't let myself hope, but now I am hopeful. So fingers crossed. This is actually a pretty important point. I mean, if you look at Haris Rauf yesterday, usually he balls around 140 to 145, but yesterday he was consistently over 145. He even reached 95 miles per hour at one ball, and he was unplayable. And before the match, we were actually having the debate that should he play over Wasim, considering Wasim also bats. तो वो गुस्सा तो होना चाहिए. I mean, New Zealand were the ones who ditched us biggest. Like वो आए और वापस चले गए, तो गुस्सा तो होना चाहिए. They can New Zealand. They always act as the underdog at major ICC events. No one expects them to do well, but if you look at the World Test Championship, World Cup, they always have a knack of coming out and showing कि वो best है. So मुस्तफिज मैं इसके बाद आपके पास आना चाहता हूँ. हम हमेशा सोचते हैं कि जो न्यूजीलैंड है ना, ये टेस्ट वो फास्ट ट्रैक पे अच्छा खेलते हैं ना. But if you remember कुछ साल पहले जब T20 टूर्नामेंट हुआ था and against India, they scored 120 and everyone thought it's a walk in the park for India. India का अपना home ground था. But Ish Sodhi and Mitchell Santner, उन्होंने इतनी खूबसूरत spin bowling की, I think India got out for 70 odd. So what's your prediction for tomorrow? Do you think कि कल pace का ज़्यादा चलेगा या spin match side होगा? पहली बात तो ये कि like obviously when you mentioned the fact that New Zealand are considered to be underdogs this tournament, मेरे ख्याल से they're pretty much favorites considering the lineup that they have, which includes their pace bowling, which includes their openers, which includes their middle order, which includes their spin bowling. जहाँ तक spin की बात है, I think कल the spin combination that we used was incredibly effective. मिसाल के तौर पर we gave Hafiz 2 overs मेरे ख्याल से, which was not something one would expect. ठीक है. शादाब bowled beautifully. फिर इमाद ने open handle किया था. मतलब एक तरफ से शाहीन तो था ही था, but इमाद contained them pretty well दूसरी तरफ से. तो मेरे ख्याल से UAE के wickets में spin is always going to be effective, and I would expect New Zealand to play both Santner and Sodhi कल, even though they have a very good pace attack मेरे ख्याल से. Jamieson भी है. Jamieson को बिठा नहीं सकते, वो Ferguson भी है, and then they also have Bolt obviously. Saudi भी है मेरे ख्याल से squad में, yep. And they have Nisham. तो there is a selection crisis मेरे ख्याल से उनकी तरफ से कि अगर उन्होंने 2 स्पिनर खिलाने हैं तो किसको नहीं खिलाना. But overall I would expect them to play 2 spinners. I personally think that New Zealand team and most of the bowlers that they have, they're similar to ours. I mean, look at Trent Bolt and Shaheen Shah. Pace में थोड़ा फर्क है दोनों का, but you get the point. Both are good at swing.
And if you can consider Lockie Ferguson and Harris of both ball with express pace, but it would be criminal to compare Harris with him. Obviously, Ferguson is way better. Mitchell's standing balls like Imad Wasim. And you see there's a bit of similarity between the two teams, which makes me wonder कि हमारा attack जो का इतना brutal होगा कि Shaheen Shah आएगा open करने, लेकिन they would have been facing Trent Bolt in the nets for like, I don't know, since the last 2 years. So they wouldn't have an issue on it. So Mohit, do you think our bowling attack would be as potent as it was last time? मतलब मुझे तो लग रहा है कि यार ये इतना serious नहीं कर. देखो India देखो they don't have a left-handed fast bowler. So I think that is one of the main reasons why अभी तक रोहित शर्मा की weakness overcome नहीं हुई. So what are your thoughts on this? And I know you don't like me being formal, लेकिन चलो. यार नहीं, I think like कल इमाद वसीम शादाब शायद, यानी मैं कल भी उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे कि वो इतनी अच्छी बॉलिंग कराएगा, पर उसने अच्छी बॉलिंग कराई है. मगर आई थिंक लाइक शाहीन से ज़्यादा कल मैदान उसका होगा, इमाद वसीम वगैरह का. हफीज़ भी अगर उसके चॉइस के बल्लेबाज आ जाए सामने तो वो होगा, बट आई थिंक सीधी बात है, लेफ्टी आए तो फीस है. हाँ, मगर फिर भी लाइक आई थिंक लाइक न्यूजीलैंड वुड बी बेटर एट हैंडलिंग आवर बॉलिंग इंडिया की निस्बत. तो वो बात है, मगर फिर उनके जिस तरह के फास्ट बॉलर्स हैं, तो बाबर आजम ने जो उसके ऊपर कवर ड्राइव्स मारनी है, तो दिल तो सोच के जरा खुश हो रहा है. वर्ल्ड कप याद आ गया, ट्रेंट बॉल स्विंग करा रहा है और सामने वो कवर ड्राइव जा रही है बाबर आजम की. आई स्वेयर टू गॉड वो बेस्ट मैच था हमारे लिए. ठीक है, इवन तो इंग्लैंड के खिलाफ हमने बहुत बड़ा स्कोर किया था, लेकिन वो जो रन्स थे ना वो बहुत अच्छा. जोहा, हम देखते हैं कि व्हेनेवर अ टीम विंस द टॉस वो पहले बॉलिंग कराती है, बट इफ यू लुक एट न्यूजीलैंड, उनकी स्ट्रेंथ ये होती है कि वो पहले बैटिंग करती है, and even though they do not score well, they manage to restrict the opposition. If you look at the World Cup, the ODI World Cup, वो क्या करते थे, 240 से 270, that was their limit. वो इसके दरमियान स्कोर करते थे, and somehow they used to choke the opposition. Kane Williamson, hats off, उसके tactics इतने fit होते थे कि singles वगैरह नहीं मिलते थे. So even if you look at the practice matches, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने वाले थे, वो तो एंड में एज लग गया और चौका चला गया लास्ट बॉल पे, जिसकी वजह से वो जीत गए. So अगर कल बाबर आजम टॉस जीता है, उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? I think we should play to our strengths. पहले we should chase because that's what you're good at. उसके अलावा I feel like हमारी bowling हमारी strength है. You restrict them, you chase that score कर लेते हैं. When you're batting first, I feel like फिर batsman पे बहुत score आ जाता है to put 200 because that's the score that's a good score if you're looking to defend in UAE, or 200, and then again you have to make sure that Rizwan and Babar play throughout, or फिर अगर नीचे से भी फिर आसिफ अली भी खेले, शोएब मलिक भी खेले, हफीज भी खेले, which is unlikely. If you look at Pakistan's statistics, if one of them goes down, all of them go down. So I think we should play to our strengths. I know New Zealand का ये है एक doing chases in UAE. You should stick to that. Have believe in your bowling. You just restrict them and you get the result. I mean, कोई expect नहीं कर रहा था India 150 पे restrict हो जाएगा, but you did it. So I think that's your safe bet. I actually agree with what you're saying, definitely. Mustafiz, the next question is for you. Mustafiz, सारे कहते हैं bowling हमारी strength है, लेकिन अगर आप अपनी batting देखो, so you have Babar Azam, world's best batsman, Mohammad Rizwan, the one जिसने सबसे ज़्यादा T20 runs किए. फिर हफीज, मतलब he's 40 now, he has been a bully in T20 for the last 2 years. Not, he has been going through a bad patch, लेकिन generally वो बहुत है. And Malik इतना spin का specialist है, tailor made for UAE conditions. Why is it that we do not have a superstar in bowling so far? We have very good players, but not a superstar. Like Jasprit Bumrah is considered one of the best here. Why is it that even with this situation, हम हमेशा अपनी bowling पे rely करते हैं, even though हम on paper हमारी batting ज़्यादा बेहतर है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. आई थिंक ओवर द पास्ट 5 years या उससे पहले पिछले डेकेड में आवर बॉलिंग हैज बीन आवर स्ट्रेंथ. तो हमारे ज़हन में एक स्टीरियोटाइप बन गया कि नो दिस इज इट, हम बॉलिंग स्पेशलिस्ट हैं, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज वी लिटरली पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान प्रोड्यूसेस द बेस्ट पेसेस वगैरह, कि पाकिस्तान हैज कितने एटलीस्ट 4 people दैट आई कैन काउंट ओवर द टॉप ऑफ माई हेड जो 150 पर बॉलिंग करा सकते हैं, व्हिच इज लाइक हारिस रऊफ है, वसीम है, हसनैन है, ठीक है, और नसीम है,
ठीक है, but like we also have a very decent batting lineup obviously, but then you think about the fact that over the recent years आपने जितने T20s खेले हैं उसमें when Rizwan and Babar have lost their wickets early on, we haven't really been able to do much. Like I remember a couple of Hafiz innings and I remember a couple of Fakhar Zaman innings. उसके अलावा there hasn't been much. So individual one-off performances, yes, but overall as a combination, our batting hasn't stuck consistently. Compared to like ठीक है, over the past few years हमारी bowling भी इतनी कोई खास नहीं रही, but at least there has been some combination, some sparks in that. But I think इस वजह से there's this idea कि पाकिस्तान की bowling is our strength, which I might not agree with to 100% extent, but which is completely understandable. अच्छा, वैसे मुझे पर्सनली लगता है ये मैच जो है ना हफीज भाई चल जाएंगे. हफीज इज अ बुली व्हेन इट कम्स टू न्यूजीलैंड. अगर तुम लोगों को याद होगा पाकिस्तान गया था न्यूजीलैंड, वहां की स्विंगिंग विकेट पे 99 कर आया था T20 में जब पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई थी. तो सारे एक एक दफा अपने बता दो हु डू यू थिंक वुड बी सरप्राइज पिक फॉर टुमारोज मैच, कंसिडरिंग कि हमने पाकिस्तान की बैटिंग सिवाय उन दो प्लेयर्स की देखी भी नहीं. बाबर एंड रिजवान डोंट काउंट एज सरप्राइज पे क्योंकि हम सब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा खेलेंगे ही खेलेंगे. डेफिनेटली फखर. मुझे लग रहा है कि कल बॉबी और फखर का देना. और बॉलिंग में तो लगता है कि इमाद वसीम, बट उसको लाइक इट कुड गो बोथ वेज फॉर इमाद अच्छा, वसीम. इमाद वसीम को 4 बहुत ओवर्स कुड भी पड़ मिलते नहीं सकती है है और पूरे, उसको 4 ओवर मिलते ही नहीं है पूरे. मैं इससे हैरान हूँ. मतलब वो रन्स बहुत अच्छे रोकते हैं लेकिन उसको ओवर पूरे नहीं देते. ये मैंने प्रैक्टिस मैचेस में देखा, कल के मैच में देखा. तो आज़वा आप अपनी प्रेडिक्शन भी बता दो और इसका जो भी जवाब दे दे कि डू यू थिंक ही डिजर्व्स मोर ओवर्स कंसीडरिंग कि मिडिल ओवर में आकर रन रोक सकता है आराम से. I think बाबर की जो जनरल स्ट्रेटजी है ना वो है कि 15th ओवर के बाद स्पिन नहीं लगाना, which is why वो पेस पूरा हो जाता है तो then इमाद is left to not bowl. I think वो उसके साथ हुआ भी, उसने 2-3 दफा शदाब को दिए हैं आखिरी 5 ओवर, they've gone for a lot of runs, so he just stays away from that. But again, Imad Wasim has a great record in UAE, and agar risk wo dekhna hai, if you want to play with that, you can always do that, like he did yesterday, putting Shaheen's third over in like the power play. I thought that was dangerous, but it worked for us. And I also think I'm gonna go with Fakhar Zaman, partly because I think at this point the entire Pakistan was an applause for Lahore Qalandars. कल शाहीन और हारिस साहब ने जिताया, हमें बहुत ट्रोलिंग मिलती है, but now Fakhar is gonna play in the next match and then everyone is gonna, I think Lahore Qalandars deserves all the credit in the world after this World Cup. पता नहीं क्या है इसने लाहौर कलंदर का नाम लिया, मुझे टेंशन लगनी शुरू हो गई कल के मैच के लिए, पता नहीं क्यों. जय It's a jinx. I mean, no, credit goes to लाहौर. उन्होंने बहुत कमाल प्लेयर है. हारिस रऊफ, शाहीन, ये फखर जमान, ये सारे जो खेल रहे हैं वो उन्हीं का नतीजा है. लेकिन जब भी वो आते हैं ना वो पास्ट मेमोरीज वापस आ जाती है. मुस्तफीज, योर टेक ऑन दिस? On what, Lahore Qalandars? No, सरप्राइज पिक. लाहौर कलंदर नहीं, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे हम अभी. Surprise pick या surprise performer? Like I'm confused. परफॉर्मेंस, सॉरी. Surprise performance, Imad Wasim with the bat. इमाद वसीम विद द बैट. तुम ये सोचो हम Yes. इतना बुरा खेलेंगे कि इमाद वसीम की बैटिंग रिलाई Yes. करना पड़ेगा. It's gonna फिर oh my god, that's तुमने gonna surprise बोला ना, आप नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा. I'll need my anxiety meds for that. I Unless you're think sending I think we need a new person instead of Mustafiz now. I'm sorry. unless you're sending Imad Wasim one down, I'm not backing this at और अगर ये all. होगा भी ना, अगर पाकिस्तान की बैटिंग करती भी है क्रम्बल, जो मुझे नहीं लगता कि कल करेगी, तो फिर भी सरप्राइज Batting पिक first इमाद करो तो वसीम कर नहीं होगा, सकती हसन है. अली होगा. बैटिंग Hussain Ali, फर्स्ट करो, बैटिंग फर्स्ट करो तो हो सकती है. बैटिंग सेकंड होना तो पता नहीं चेज में स्पेशलिस्ट होगी. मुझे आज भी याद है कुछ साल पहले पाकिस्तान चेज कर रहा था, 240 में भी क्रम्बल कर जाते थे इन ODI. तो पता नहीं क्या चेंज हुआ मेंटालिटी में. वी आर नाउ सो गुड. आई सॉ वो टीवी पे देखा, मोहम्मद कैफ इज लाइक ऑल थिंग्स असाइड. मैंने बच्चों को ये इनिंग्स दिखाऊंगा, इसने छक्के भी मारे, चौके भी मारे,
स्ट्राइक भी रोटेट की. इट वाज अ परफेक्ट इनिंग्स एंड आई एम लाइक यार क्या दिन आ गए पाकिस्तानियों को ऐसा करना पड़े. Also, लेकिन इतना वो मजा कर रहे थे ना, you could tell Rizwan and Babar were having the time of their lives. They were laughing. उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. They were just whatever in a field full of Indian players. They're like, this is just a practice match for us. हाँ वो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो क्या नाम है उस एक्टर का वो जो आया था उसने Akshay नाम भूल गया. Kumar. हाँ अक्षय कुमार. Yeah. वो Yeah. एक उसने मूवी बनाई थी ना जिन्होंने, उसने इंग्लैंड में बड़ी बॉलिंग कराई थी, विकेट लेता है इंग्लैंड में. हाँ मैं कभी वो नीचे आएगा उतर के कहेगा रुको अब जरा मैं. लेकिन कब मुझे ये समझ नहीं है व्हाई डिड दे नॉट बॉल बुमराह इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स. उनको क्या ये लग रहा था कि वो एंड तक इतना चौक करते कि पाकिस्तान को कि लास्ट 3 ओवर्स वो एंड में कराएगा वो बच जाएंगे. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड think दैट. they- अपना स्ट्राइक बॉलर जब स्विंग हो रहा है तब लेकर आओ, ये क्या हमने एंड के लिए बचा कर रखा हुआ है. I think उन्होंने अपने नए स्पिनर को बहुत बैक किया था, considering के our spinners did pretty well Yeah. to stop the runs. I'm surprised they didn't play Ashwin because मुझे ऐसा लग रहा था they will play him. Ashwin would have didn't. been great in this situation. वो runs choke करने में स्पेशलिस्ट है. वो एक लाइन कराता रहता है वहां पे, वो कवर पे खेलता है, वो बॉल रुक जाती है, सिंगल नहीं निकलता. ये तो ऑल ओवर द प्लेस था. ये बहुत वाइड कराता था, आराम से वो कट करके सिंगल लेता था. फिर वो पैड्स पे कराता था, वो आराम से वो उसको मार के. पहले ओवर में बाबर को मुश्किल हुई थी खेलते हुए क्योंकि उसको समझ नहीं आई थी किस तरह का बॉल है. बट वंस ही अंडरस्टूड हिम, रिजवान और बाबर दोनों ने एक छक्का मारा था एक ही ओवर में. तो आई I थिंक don't watch IPL, but apparently it's a big thing in IPL, and I don't watch it either. I'm not He's sure a good about the bowler with him. He's a pretty good bowler. I think like yesterday just wasn't his day. I think but I mean Kuldeep- उसकी एक highlight I'm a देखी big थी. Kuldeep fan by the way. I think Kuldeep को होना चाहिए था True. squad में. True. मगर अश्विन को होना चाहिए था, like definitely 100%. He was the बेचारा best. Shami is facing abuse now. Twitter is all over him saying कि इसको पाकिस्तान की तरफ से खिला दो. I mean बेचारा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है तो उसको वापस वो मुसलमान होने पे पाकिस्तान की तरफ भेजा जाता है. So that's kind of I sad. mean, लेकिन उनका आ, टेस्ट का बॉलिंग जो है वो शामी ने होल्ड किया हुआ है काफी जी? सालों से. हाँ उनका टेस्ट का अच्छा बॉलिंग अच्छा खासा बॉलर है. लाइक वो शुरू में तो उसकी स्पीड भी नहीं थी ना स्विंग थी. ही डेवलप्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम. बट आई पर्सनली थिंक जस्ट वो जो भुवनेश्वर कुमार है ही रिग्रेस्ड. वो जब शुरू में आया था वो तो स्विंग इतनी करता था, मुझे आज भी याद है. वो हफीज लीव कर रहा था आउट और वो बाहर से बॉल अंदर आकर उसकी टॉप ऑफ ऑफ स्टंप उड़ा गया था. दैट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलर्स आई रिमेंबर इन माय बचपन. ये वो वाली सीरीज है जिसमें हमारे पास जुनैद खान था, उनके पास भुवनेश्वर कुमार था. रिमेंबर दैट सीरीज. जुनैद खान हर मैच में विराट कोहली को आउट करता था. और हमने मोहम्मद इरफान को भी लेके गए थे पहली दफा. और मोहम्मद इरफान वो उसका साइड स्क्रीन से ऊपर हाथ चला जाता था. लेकिन ओवरऑल आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हमारा अगला मैच भी हम जीतेंगे क्योंकि आई सॉ द ड्रेसिंग रूम वीडियोस टू एंड बाबर वाज डिटरमिन्ड कि ये पहला मैच है, कंसंट्रेशन खराब नहीं करनी. ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या है वो पाकिस्तान से थोड़ी फील आती है कि ये थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे. लेकिन ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो भी पहले बैटिंग करेगा दे वुड स्कोर अराउंड 165 और जो करेगा 165. दोनों की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, बोथ आर केपेबल ऑफ. तो तुमने भाई की वो उठाई है. नहीं ये नहीं हाँ? मानता. हाँ? मेरी वाली प्रेडिक्शन कल वाली तुमने उठा के रख दिया. तुमने 160 बोला था, मैंने 5 रन ऊपर बोले. अरे 160 to 170 बोला था तुमने, कहा ऐसा 165. अच्छा जी. यार वो सब में ना ग्राउंड बहुत बड़ी, मुझे नहीं लगता आसिफ अली से छक्के लगेंगे. शारजा आओ मैं तुम्हें 200 का बताऊंगा प्रेडिक्शन. अच्छा, सही बात है. सरप्राइज परफॉर्मेंस में किसी ने आसिफ अली नहीं बोला. आई एम यार सरप्राइज. आई एम सॉरी, मैं उसको बहुत दफा उस पे भरोसा कर चुका हूँ, नहीं फर्क नहीं पड़ा. I mean I he think played हैदर अली in को the खिलाना warm-up चाहिए by the match. way. आई पर्सनली थिंक टू, लेकिन वो इतना नीचे खेलता नहीं है. इवन तो उसने पेशावर ज़ल्मी के लिए 1-2 दफा खेला था, अगर याद हो फिनिशर आया था, 32 रन किए थे, कुछ 10 ऑट बॉल्स पे मैच जिता दिया था. लेकिन वो नहीं किसकी बात हो रही खेलेगा. हैदर अली हैदर नहीं खेलेगा वैसे. आई डोंट नो. नहीं खेलेगा. कल वाला मैच तो नहीं खेलेगा. I think Oh, वो we खेलता ही have one more yeah. person coming to our thing. So let's take his views on it and then we shall conclude it. Hello, Amar, can you hear me? Oh, he's connecting his audio. I think practice होगी ना तो हम ये videos अच्छी बना सकते हैं. Hello, Amar, can you hear us? Yes, I can.
So you're late to join the party. So we'll directly ask you the questions. सबसे पहले आपको मुबारकबाद, तो इंडिया फाइनली हार गया, 22 साल हो गए खैर क्रिकेट खैर देखते। मुबारक, खैर मुबारक। पार्टी बहुत लंबी लास्ट करेगी, अभी nobody is gonna be late। अभी तो 10 महीनों से रहा है भाई, बड़ी लंबी मोमेंट पार्टी साकिब है। मोमेंट साकिब की वीडियोस देख देख के पूरी रात गुजार ली है मैंने। Okay, so jumping straight to the questions, क्योंकि हम 20 मिनट्स हो गए ऑलरेडी करते हुए। कल कौन जीत रहा है, कल कौन सरप्राइज पिक है? पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए कंसीडरिंग न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड? और डू यू थिंक कि वी हैव व्हाट इट टेक्स टू डिफीट न्यूजीलैंड, कंसीडरिंग कि हमेशा अंडरडॉग्स होते हैं, वो बहुत अच्छा खेलते हैं? नंबर 1 सरप्राइज पिक, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ कौन टॉप 2 परफॉर्मर्स मेरे नज़र में होंगे, लेकिन सेम टीम ऑब्वियसली न्यूजीलैंड स्पिन के अगेंस्ट सफ़र करेगी। शादाब इमाद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा मुझे लग रहा है, और ये जाहिर है अब हमने उससे बदला भी लेना सिक्योरिटी सिचुएशन का, तो हमारे प्लेयर्स के माइंड में वो है, क्योंकि देखें हम लोगों को ये बात मजाक लग रही है, लेकिन आपको पता है कि पीसीबी के टॉप लेवल तक ये बात गई। रमीज राजा ने खुद कहा कि यार देखें कितना गलत इन्होंने किया, और हमें इमरान खान इसका कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर एज वेल। एग्जैक्टली, तो वो सारा कुछ वो यकीनन टीम की नज़र के अंदर है वो बात। और इंडिया से जीते हुए हैं, तो वैसे ही हम अब इस वक्त तो हाई हैं, अभी तो हमारे आई होप डाउनर अभी शुरू ना हो, लेकिन अभी तो हम एंजॉय करेंगे। और आई थिंक के पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी चेज ही करना चाहिए हमें, जिस तरह हमने पहले किया है। अच्छी टीम बनी हुई है, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी कि हमारे साथ इंडिया वाली चीज़ ना हो, बिकॉज आपको याद होगा कि इंडिया के साथ टूर्नामेंट्स में क्या होता है कि उनका मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं होता, और फिर जब अचानक से एक्सपोज होता है तो वो सफ़र करना शुरू कर देते हैं। तो हम क्योंकि पहले मैच में हमारा मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ, और अभी उन्होंने प्रेशर हैंडल नहीं किया, इवन दो कि हफीज़ और शोएब मलिक जैसे एक्सपीरियंस को शायद अभी अब इस स्टेज पे प्रेशर हैंडल करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक दफ़ा टेस्ट होना और उस कंडीशन में उनका खेलना बहुत ज़रूरी है। तो अभी खेलेंगे तब मुस्तफीज सब ने पता बोला चलेगा। था कि इमाद हसीन कल बैटिंग बहुत अच्छी करेगा, तो आर यू इनडायरेक्टली हिंटिंग के कल हमें इमाद हसीन पर रिलाई करना पड़ेगा? मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं नहीं, हुआ, सिर्फ ओपनर पे वो आई थिंक दैट वुड बी फॉर द अफगानिस्तान गेम। वो हमें पता है कि उसका थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो वो ओपनर करा दो। तो वो हम लेकिन आज भी एक गेम जो स्कॉटलैंड अफगानिस्तान की, ये भी बहुत फन गेम होगी, और हमें ये भी इसको नज़र में रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप के अंदर शायद सेमीफाइनल तक पहुंच रहा है और सरप्राइज कर रहे लोग। बट हाँ, उनकी बैटिंग को देखो, सिर्फ उनमें एक हजरतुल्लाह जज़ाई है जो छक्के मारता है वगैरह, लेकिन नहीं, आपने मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में उनके वार्म अप मैचेस जो हैं वो बहुत गौर से नहीं देखे, क्योंकि इस दफ़ा वो बहुत तगड़ा मिडिल ऑर्डर लाए हैं, और वो आईपीएल की ब्रांड ऑफ क्रिकेट को उन्होंने फॉलो किया, और वो हर बंदा आके बस पहली बॉल से हिटिंग शुरू कर देता है। तो वो बहुत लीथल हो सकता है, मतलब इट कैन गो ईदर वे। आप बहुत 20 ऑल आउट भी हो सकते हो, लेकिन आप 240 भी बना सकते सर, you quoted IPL right now, but fun fact, ever since IPL was founded 2007, उसके बाद से इंडिया का भी वर्ल्ड कप नहीं जीता T20 का। तो आईपीएल की Yeah. क्रिकेट और असली इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क होता है। मतलब मैं भी अपने घर की ग्राउंड में छक्के मार के खुश होता था, वो फिर लम्स में आकर क्रिकेट टीम में गया तो पता चला कि क्या हमारा लेवल है। तो सही बात है, सही बात है। नहीं, आईपीएल ने इंडिया की ब्रांड ऑफ क्रिकेट को तो इम्प्रूव किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। वर्ल्ड कप नहीं जीता तो ये तो अब ये इसमें किस्मत भी आ जाती है। वो कहते हैं कि विराट कोहली के वैसे सितारे गर्दिश में रहते हैं, तो वो उसके लिए मुश्किल है शायद वर्ल्ड कप, वो चाहे या कोई उसको भी ऐसी आईपीएल कल ट्रॉफी। सारे जलील करे थे, बैटिंग में भी उसने अच्छा किया था, देयर वाज नथिंग ही कुड डू इन द बॉलिंग। लाइक वो खुद यार आके थोड़ी बॉलिंग करा सकता है। जब तक उसको करें तब तक ठीक है। वो इंडियंस तो थोड़ा एक्सट्रीम चले जाते हैं, कहते हैं मोहम्मद शामी मुसलमान है इसीलिए कर रहा है, हमने ये ये भी विराट डिस्कस कोहली किया को था। अनुष्का शर्मा ने कहा है मैच हारना है, वो अक्षय कुमार जो है वो हमारा पनौती है। मतलब ये तो इस तरह की बातें करते हैं। Oh, our time is running out for today, so I think that would be all. Anything before we end this episode? No, I think some सारों की बात हो गई है।
Okay, so Oh, exciting. we hope that you guys actually like this video as well. And last time we got 130 viewers, which was like way beyond my imagination. I thought 60 is saying a maximum. So keep on watching, and we'll be back with the Afghanistan match as well. So bye everyone. Hi, it was great.